Welcome back dear students. This is Dhananjay Singh, Biology faculty of your school. Students, we are discussing chapter 2, that is biological classification. And in this chapter so far we have discussed the first 3 classes of kingdom Protista. Today I am going to discuss about the last 2 parts. One is slime modes and another is protozoans. So first of all I am going to discuss about the fourth class, that is slime modes. Slime modes. We discuss here slime modes, that are protists. So students, slime modes earlier considered as fungi. बेटा सबसे पहले जब इनकी डिस्कवरी हुई तब इनको लोग ऐसे फंजाई कंसीडर करते थे. But later on they are kept in a class that is known as mycetozoans. Mycetozoans. Mycetozoa means a special type of fungal animal. What means mycetozoa is a Latin word. क्या है? ये एक Latin word है. Latin word, which means mycetozoa is a Latin word which means fungal animals. Fungal animals, because mycology is the study of fungi and zoa means animals. They are fungal animals, though they are not animals, but they are not considered in the fungi. If anyone asks you why these organisms are considered as fungi, so the answer is they form fruiting bodies. Why? They form fruiting bodies. Fruiting bodies. Just like fungi. Just like fungi. Fungi produces fruiting bodies in the same way slime modes also produces fruiting bodies. That's why they are considered as fungi, and these fruiting bodies are formed for the spore dispersal. If anyone asks you why these fruiting bodies are formed, they are formed for spore dispersal. Spore dispersal. You have seen in your class 10, in right of us, a special type of fruiting body is formed, and inside this, number of spores are filled. And when this fruiting body or sporangia burst out, then these spores are spread out. Then these spores are spread out. So due to the presence of this fruiting body, slime modes are considered as fungi, though they are not fungi, because later on, when DNA sequencing is carried out on slime modes, then what happens? Then scientists considered as that slime modes are the ascendant of the fungi, means they are the evolved fungi. They are not a fungi. Only evolutionary relationship are met between the slime modes and fungi. Okay. After that, the sequencing also tells us about that these are the organisms that are, we can say that, ancestors of the multicellular organisms. These unicellular organisms, these unicellular organisms are the ancestors of multicellular organisms. They are the ancestors of multicellular organisms. I will prove it how and why they are called as ancestors of multicellular organisms. So here so far we have discussed earlier period slime modes are considered as fungi, but DNA sequencing methods tells us that they are not fungi, only they are the ascendant of the fungi. They have some evolutionary relationship with fungi. Now we also know that the unicellular slime modes of these protozoans are the ancestors of the multicellular organisms. Okay. Next thing is that these
in slime molds, so they are classified or divided into two groups on the basis of their structure. One is plasmodial, and another is cellular slime mold. One is plasmodial slime mold and another is cellular slime mold. Plasmodial slime mold. Okay, what are the plasmodial slime molds? Plasmodial slime molds are formed when number of slime molds aggregate together. When number of slime molds are aggregate together, then they form plasmodial slime mold. और अ बॉडी दैट इज नोन एज प्लाज्मोडियम. बेटा क्या होता है, जब खूब सारे स्लाइम मोल्ड आपस में एग्रीगेट कर जाते हैं, देन दे फॉर्म तब वो बनाते हैं अ बॉडी दैट इज नोन एज प्लाज्मोडियम. तब बेटा उसको क्या नाम देते हैं, प्लाज्मोडियम. डोंट कंफ्यूज दिस प्लाज्मोडियम विथ प्लाज्मोडियम पैरासाइट दैट इज मलेरिया कॉजिंग. बेटा जो मलेरिया कॉजिंग पैरासाइट होता है वो डिफरेंट है, वो टोटली डिफरेंट है. इसको प्लाज्मोडियम जब खूब सारे स्लाइम मोल्ड्स, अब बेटा कैसे ये आपस में एग्रीगेट करते हैं आपको हम बताते हैं. यहाँ पे ये 4-5 हमने बेटा कोई भी स्लाइम मोल्ड ले लिए, बिकॉज दे आर एग्रीगेट टुगेदर देन फॉर्म प्लाज्मोडियम. देन दिस प्लाज्मोडियम इज वेरी बिग इन साइज, वी कैन से दैट नंबर ऑफ सेंटीमीटर्स इन लार्ज. तो क्या हो सकता है कि यह मल्टीसेलुलर बन गया? नहीं बेटा, ये मल्टीसेलुलर नहीं थे, दे आर यूनिसेलुलर, ये सिंगल सेलुलर होते हैं. सो हाउ दे फ्यूज टुगेदर बाय देयर प्लाज्मा मेम्ब्रेन. बेटा क्या होता है, इनकी प्लाज्मा मेम्ब्रेन्स ब्रेक हो जाती हैं और आपस में फ्यूज कर जाती हैं. What happens? Their plasma membranes are breaks and fuse to each other. इनकी प्लाज्मा मेम्ब्रेन आपस में ब्रेक करके फ्यूज कर जाती हैं और कुछ इस टाइप का स्ट्रक्चर बनाते हैं. अ लार्ज सेल विद अनडिवाइडेड साइटोप्लाज्म. क्या होता है, एक लार्ज सेल बनती है जिसमें अनडिवाइडेड साइटोप्लाज्म होता है. साइटोप्लाज्म डिवाइड नहीं होता है, बट नंबर ऑफ न्यूक्लियाई आर प्रेजेंट. व्हाट इज, ये क्या है बेटा, सारे के सारे न्यूक्लियाई. दिस इज अ मल्टी न्यूक्लिएटेड बॉडी. This plasmodium is multinucleated body where plasma membrane unable to divide. That's why what happens, a number of nuclei is present in a single cell. क्या हो जाता है बेटा, एक सिंगल प्लाज्मा मेम्ब्रेन के अंदर बहुत सारे न्यूक्लियाई भरे हुए होते हैं और ऐसी बॉडी को हम प्लाज्मोडियम नाम देते हैं. Why? And now what happens, दिस न्यूक्लियस आर स्टार्ट टू डिवाइड. बेटा क्या होता है, अब ये न्यूक्लियस डिवाइड करना स्टार्ट कर देते हैं. दिस हैपेंस व्हेन द अमाउंट ऑफ फूड इज सफिशिएंट इन द विसिनिटी. क्या होता है बेटा, जब इन्वायरमेंट में फूड का अमाउंट ऑप्टिमम होता है तब ये प्लाज्मोडियम डिवाइड करते हैं, प्लाज्मोडियम के अंदर के न्यूक्लियस डिवाइड करते हैं और अपना साइज बढ़ाते हैं. बट दे डोंट इंक्रीज देयर सेल नंबर, अपना सेल नंबर नहीं बढ़ा पाते हैं. नाउ due to the presence of number of nuclei, that's why they are called as plasmodium. सिंगल प्लाज्मा के अंदर खूब सारे न्यूक्लियस भरे होते हैं, इसलिए इसको क्या नाम दिया गया, प्लाज्मोडियम नाम दिया गया. क्यों इसको प्लाज्मोडियम बोला गया, बिकॉज प्लाज्मोडियम बेटा क्या करता है, एक आरबीसी के अंदर बहुत सारे प्लाज्मोडियम भरे हुए होते हैं. तो इसका जो बेटा स्ट्रक्चरल रिजेम्बलेंस था, the structural resemblance of this slime mold are just similar to an RBC that is infected with the plasmodium parasite. बेटा जो एक प्लाज्मोडियम पैरासाइट से इन्फेक्टेड आरबीसी का स्ट्रक्चर होता है, बिल्कुल सेम ये स्ट्रक्चर दिख रहा था. दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड एज प्लाज्मोडियम. बेटा इसीलिए क्या है, इसको प्लाज्मोडियम बोला गया. ओके, नाउ नेक्स्ट थिंग इज दैट this is the all about its structure. Next thing is that how they
eat और किसी see that how they feed, what are their food habit. बेटा इनका food habit क्या होता है? So their food habit is due to the phagocytosis. बेटा जो इनका food habit होता है या जो कैसे खाना खाते हैं, they feed through phagocytosis. मीन्स बेटा जैसा फूड हैबिट अमीबा के अंदर मिलता है, व्हेन मीन्स दे आल्सो हैव phagocytosis because they have pseudopodia. अब बेटा फैगोसाइटोसिस करने के लिए सबसे इम्पॉर्टेंट सिस्टम है वो स्यूडोपोडिया है, फॉल्स फीट हैं. दिस प्लाज्मोडियम अल्टीमेटली फॉर्म स्पेशल टाइप ऑफ फास्फीड्स. बेटा क्या करते हैं, अपने अंदर एक स्पेशल टाइप के फास्फीड बना लेते हैं, इनको हम स्यूडोपोडिया बोलते हैं. वेयर एनी टाइप ऑफ फूड पार्टिकल्स कम्स देन व्हाट हैपेंस, दिस स्यूडोपोडिया कॉन्ट्रैक्ट आउट. बेटा क्या होगा, तब जो इनका स्यूडोपोडिया होगा वो स्पेशल टाइप का स्ट्रक्चर बनाएगा और उसके अंदर ये फूड पार्टिकल आ जाएगा. अल्टीमेटली दिस स्ट्रक्चर कन्वर्ट इनटू द फैगोसोम. ये बेटा स्ट्रक्चर किस में कन्वर्ट हो चुका होगा, एक फैगोसोम में कन्वर्ट हो चुका होगा और वेसिकल के फॉर्म में कट होके अंदर आ जाएगा. डाइजेशन के बाद इसको बॉडी से बाहर निकाल दिया जाएगा. सो दिस टाइप ऑफ द फूड हैबिट इज नोन एज फैगोसाइटोसिस that is present in the plasmodial slime mounds. Okay, next thing is that this is all about its food habit. So now what happens if there is no food? क्या होगा बेटा अगर कोई फूड ना हो, then they go for the reproduction or they form a reproductive stage. जैसे जैसे बेटा इनके चारों तरफ अमाउंट ऑफ फूड कम होता चला जाता है, then they start to क्या लिखेंगे, when food is exhausted. बेटा जब सारा का सारा फूड एग्जॉस्ट हो जाता है, then they form a special fruiting body. बेटा क्या करते हैं, ये एक फ्रूटिंग बॉडी बनाते हैं, then they form a fruiting body. तब अपने आप को एक फ्रूटिंग बॉडी में कन्वर्ट कर लेते हैं. हाउ, दिस प्लाज्मोडियम अल्टीमेटली form a fruiting body, and in this fruiting body number of spores are filled and these spores are true walled. कैसे बेटा हैं, true walled, resistant structure और true walled spores. क्या होता है बेटा, and these spores are sexual spores. कैसे हैं बेटा, एसेक्सुअल स्पोर नहीं है, दे डू सेक्सुअल रिप्रोडक्शन व्हेन जर्मिनेट. क्या होता है बेटा, अब क्या होगा, नाउ दिस फ्रूटिंग बॉडी ब्रस्ट आउट. बेटा क्या होगा, जब फूड की कमी या फूड एग्जॉस्ट हो गया सारा का सारा, तब इन्होंने क्या किया, अपने ऊपर एक एक्सटेंडेड स्ट्रक्चर बनाया और उस एक्सटेंडेड स्ट्रक्चर में एक फ्रूटिंग बॉडी डेवलप करी. फ्रूटिंग बॉडी के अंदर खूब सारे इन्होंने स्पोर्स भर दिए. नाउ व्हेन दिस फ्रूटिंग बॉडी ब्रस्ट आउट, then the spore germinate. Spore, what is this, is spore. And after germination क्या होगा बेटा, germination, it produces two type of structure, one flagellated form and another is non-motile form or non-flagellated form. One is flagellated form and another is non-flagellated form. When both these are fused together, बेटा जब क्या होता है, दोनों एक दूसरे का साथ फ्यूज करते हैं, then they start to form. फ्यूज करने के बाद में फिर से एक नया प्लाज्मोडियम बनाना स्टार्ट कर देते हैं.
देन दे स्टार्ट टू फॉर्म अ न्यू प्लाज्मोडियम। न्यू प्लाज्मोडियम बेटा कैसे बनाएंगे, जब फ्यूज करेंगे, फ्यूज करने के बाद कंडीशंस फिर से रिटर्न होंगी, कंडीशन जब रिटर्न होंगी तब ग्रो करेंगे और ग्रो करने के बाद में आपस में एग्रीगेट करेंगे और एग्रीगेट करने के बाद में एक फिर से प्लाज्मोडियम बनाएंगे। सो इट्स ऑल अबाउट द प्लाज्मोडियल स्लाइम मॉड्स, व्हाई दे आर कॉल्ड एज प्लाज्मोडियम, दे प्रोड्यूसेस फ्रूटिंग बॉडी, दैट्स व्हाई दे आर कंसिडर्ड एज फंजाई इन अर्लियर पीरियड, बट दे डोंट हैव एनी काइंड ऑफ द in their mature stage they don't have any kind of the cell wall, that's why they are considered as fungal animals, जिनका origin तो fungus like था लेकिन जिनका और features animal like है, that's why they are considered as fungal animals. Now the next thing that are cellular slime mods. The basic difference, one second, the basic difference between the cellular slime mods and प्लाज्मोडियल स्लाइम मॉड्स इज लाइज इन देयर स्ट्रक्चर। बेटा जो बेसिक डिफरेंस है वो उनके स्ट्रक्चर में है। व्हाट हैपेंस व्हेन सेलुलर स्लाइम मॉड्स एग्रीगेट टुगेदर, बेटा क्या होता है जब सेलुलर, बेसिकली बोथ आर द स्लाइम मॉड्स, बट व्हेन दे एग्रीगेट टुगेदर then they form a mass of cells और मल्टी सेलुलर मास क्या बेटा बनाते हैं, एक मल्टी सेलुलर मास बनाते हैं। बट हियर the cells are not clearly joined, the membrane of the cells are not clearly joined to each other, they remain separated from each other। बेटा वहाँ पे क्या था प्लाज्मोडियम के अंदर कि सारी के सारे सेल का प्लाज्मा मेम्ब्रेन आपस में फ्यूज कर गया था, उनके अंदर सिर्फ न्यूक्लियस बचे थे। लेकिन यहाँ पे नहीं होगा, यहाँ पे न्यूक्लियस अंदर रहेगा, सेल्स आपस में ज्वाइन करेंगी और ज्वाइन करने के बाद खुद भी प्लाज्मा मेम्ब्रेन से सेपरेट रहेंगी, खुद भी प्लाज्मा मेम्ब्रेन से सेपरेट रहती हैं। दिस इज द बेसिक डिफरेंस बिटवीन द प्लाज्मोडियल स्लाइम मॉड्स एंड सेलुलर स्लाइम मॉड्स। ओके, बट यू नोस, आप देख रहे हो एवरी टाइम दिस ऑर्गेनिज्म स्टार्ट टू फॉर्म एन एग्रीगेशन, हर बार ये ऑर्गेनिज्म क्या कर रहे हैं, आपस में एग्रीगेट हो जा रहे हैं, आपस में जुड़ जा रहे हैं। सो वी कैन से दैट सो दीज आर द ऑर्गेनिजम्स फ्रॉम वेयर मल्टी सेलुलरिटी स्टार्ट। ये वो ऑर्गेनिज्म से जिनके अंदर से मल्टी सेलुलरिटी स्टार्ट हुई थी। फर्स्ट टाइम दे एग्रीगेट टुगेदर, पहली बार ये एग्रीगेट हुए थे और एक मल्टी सेलुलर टाइप का स्ट्रक्चर बनाना स्टार्ट किया था। दो दे आर द फॉल्स मल्टी सेलुलर्स, क्या होता था आपस में सेल्स अलग अलग ही रहती थी, बट फर्स्ट टाइम दे स्टार्ट दिस। ओके, एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट स्लाइम मॉड दैट इज डिक्टियोस्टीलियम, डिक्टियोस्टेलियम डिस्क्वाइडियम, डिक्टियोस्टीलियम डिस्क्वाइडियम जो बेटा एक सेलुलर स्लाइम मॉल्ड है। डिक्टियोस्टीलियम डिस्क्वाइडियम जो बेटा एक सेलुलर स्लाइम मॉल्ड है। दिस स्लाइम मॉल्ड इज नाउ रिसर्च, दिस स्लाइम मॉल्ड इज यूज्ड बाय द रिसर्चर्स फॉर द डिस्कवरी ऑफ मल्टी सेलुलरिटी। बेटा इसके ऊपर बहुत सारे, इसको मॉडल रिसर्च ऑर्गेनिज्म बोलते हैं। दिस ऑर्गेनिज्म इज नोन एज मॉडल रिसर्च ऑर्गेनिज्म। नंबर ऑफ टाइम दिस क्वेश्चन इज asked in competitive examinations, which organism is known as model organism for the research, because यहाँ से बेटा इस ऑर्गेनिज्म से स्टडी से पता लगा कि स्लाइम मॉल्ड्स आर द ऑर्गेनिज्म फ्रॉम वेयर द मल्टी सेलुलरिटी आर स्टार्ट, जहाँ से बेटा मल्टी सेलुलरिटी स्टार्ट हुई थी। ओके, so I think it's all about the slime molds. Now we move on our next class, that is protozoans. अब बेटा अपना लास्ट क्लास हम डिस्कस करेंगे यहाँ पे, that is protozoa. Okay, protozoans. As their name suggested, proto means primitive. Protozoa is a Latin word and proto means primitive, and zoa means animals. Zoa means animals. So we can say that they are the primitive ancestors of the animals, or they are the primitive animals.
दैट्स वाई दे हैव स्पेशल टाइप ऑफ फूड हैबिट, आइदर दे आर प्रीडेटर और पैरासाइट। बेटा या तो ये प्रीडेटर हो सकते हैं या तो ये पैरासाइट हो सकते हैं। ओके, सो प्रोटोजोअन्स आर आल्सो क्लासिफाइड इनटू 4 डिफरेंट सब क्लासेस। बेटा इनको भी 4 डिफरेंट क्लासेस में डिवाइड किया गया है। लेट्स सी प्रोटोजोअन्स। So first is amoeboid, second one is flagellated, ciliated, and last one is sporozoa. Okay, so these are 4 different type of protozoans that we studies here. One is amoeboid, flagellated, ciliated and sporozoa. Amoeboid protozoans both are different from each other on the basis of their structures also. बेटा ये क्या है, कुछ ना कुछ उनके स्ट्रक्चर के बीच में डिफरेंसेस हैं, कुछ ना कुछ इनके फूड हैबिट के बीच में डिफरेंस है, कुछ ना कुछ इनके वे ऑफ इन्फेक्शन, अगर ये पैरासाइट हैं तो उनके इन्फेक्शियस स्टेज के अंदर कुछ डिफरेंसेस हैं। दैट्स वाई आर कैटेगराइज इनटू 4 डिफरेंट क्लासेस। तो फर्स्ट इज अमीबा और अमीबॉइड प्रोटोजोअन्स। दीज आर फाउंड इन मैरीन कंडीशंस, फ्रेश वाटर एज वेल एज इन सॉइल ऑल्सो। बेटा ये मैरीन कंडीशंस में भी मिल सकते हैं, ये हमको फ्रेश वाटर में भी मिल सकते हैं, ये हमको मॉइस्ट सॉइल गीली सी मिट्टी में भी मिल जाएंगे। दे आर आइदर प्रीडेटर और प्रे, आइदर प्रीडेटर और पैरासाइट। दे आर प्रीडेटर भी हो सकते हैं और पैरासाइट भी हो सकते हैं। So the predator like amoeba, जो बेटा प्रीडेटर का एग्जाम्पल है वो अमीबा है, एंड पैरासाइट एंट अमीबा, और जो बेटा पैरासाइट है वो एंट अमीबा है। एंड द बेसिक इज दैट दे हैव a special type of the false feet by which they predate on the prey is the presence of pseudopodia. They have a special type of false feet by which they predate, or we can say that they eat their prey is known as pseudopodia. बेटा अमीबॉइड प्रोटोजोआ वो होते हैं जिनके अंदर स्पेशल टाइप के क्या होते हैं, फास्ट फील्ड होते हैं, इनको हम स्यूडोपोडिया बोलते हैं। इस स्यूडोपोडिया की हेल्प से ये अपने प्रे, अपने शिकार के ऊपर अटैक करते हैं या उस शिकार को पकड़ लेते हैं और पकड़ के खा लेते हैं। दो दे आर ऑल्सो पैरासाइट, बेटा अगर वो पैरासाइट है तो जनरली कम्स इनसाइड द बॉडी ऑफ देयर होस्ट, तो अपने होस्ट की बॉडी के अंदर आएंगे और जनरली इन्फेक्ट देम लाइक एंट अमीबा। एंट अमीबा इज रिस्पॉन्सिबल फॉर कॉजिंग अ डिसीज इन द ह्यूमन्स दैट इज नोन एज अमीबॉइड डिसेंट्री, जिसको बेटा अमीबॉइड डिसेंट्री बोलते हैं। नेक्स्ट इज फ्लैजिलेटेड प्रोटोजोअन्स, दोज प्रोटोजोअन्स दैट हैव फ्लैजिला, that have flagella in their body are known as flagellated protozoans. This flagella is responsible for their free swimming, so that's why they are either free living or parasite. बेटा ये free living भी हो सकते हैं और parasite भी हो सकते हैं, because they have this flagella, that's why they are freely swim। इसलिए बेटा इस फ्लैजिला की हेल्प से फ्रीली स्विम कर सकते हैं, एक प्लेस से दूसरे प्लेस पे जा सकते हैं। द मोस्ट इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल इज ट्रिपैनोसोमा is a flagellated protozoa that is responsible for the causing disease sleeping sickness, जिसके थ्रू बेटा कौन सा डिसीज होता है, स्लीपिंग सिकनेस। Trypanosoma is responsible for causing a disease sleeping sickness, and this trypanosoma considered or studied inside the flagellated protozoa। तो ट्रिपनोसोमा बेटा क्या है, एक प्रोटोजोआ है, किस टाइप का, फ्लैजिलेटेड प्रोटोजोआ है। इसके अंदर फ्लैजिला प्रेजेंट होते हैं जो सिंपली इसको स्विम करने के लिए या मूव करने के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं, और ये ह्यूमन्स के अंदर एक डिसीज कॉज करता है
दिस डिसीज इज नोन एज स्लीपिंग सिकनेस। इस डिसीज को हम क्या नाम देते हैं? स्लीपिंग सिकनेस नाम देते हैं। नेक्स्ट इज सीलिएटेड, special type of protozoans that have number of or we can say that thousands of cilia on their surface are known as ciliated protozoans। उनको बेटा हम क्या नाम देते हैं? ciliated protozoans। they have a special type of structure, बेटा एक इनका special type का structure होता है and this structure a cavity is present on their body surface। इस स्ट्रक्चर में इनके बॉडी सरफेस के ऊपर एक कैविटी होती है एंड दिस कैविटी इज नोन एज गर्ल्ड कैविटी। इस कैविटी को बेटा क्या नाम देते हैं? गर्ल्ड कैविटी। देयर सीलिया हैव स्पेशल टाइप का मूवमेंट। बेटा क्या होता है? इनकी सीलिया के अंदर स्पेशल टाइप का मूवमेंट होता है, इस टाइप से सरफेक्टेंट मूवमेंट होता है। इस मूवमेंट के थ्रू बेटा क्या होता है? कोई भी जैसी प्रे या कोई भी फूड पार्टिकल्स इनके कांटेक्ट में आता है देन दिस फूड पार्टिकल सिंपली मूव टू द गर्ल्ड कैविटी। जैसे ही कोई फूड पार्टिकल इनके कांटेक्ट में आता है तो उसको गर्ल्ड कैविटी की तरफ, ये इनके सीलिएटेड मूवमेंट गर्ल्ड कैविटी की तरफ उसको ट्रांसपोर्ट कर देते हैं एंड थ्रू दिस गर्ल्ड कैविटी दिस फूड पार्टिकल्स आर कैप्चर्ड एंड आफ्टर द कैप्चरिंग दे आर इंजेस्टेड इनसाइड देयर बॉडी। गर्ल्ड कैविटी उसको कैप्चर करती है और कैप्चर करने के बाद बॉडी के अंदर एंडोसाइटोस कर लेती है and after digestion through the process of exocytosis they remove all the waste material। the example of the ciliated protozoa is paramecium। ठीक है बेटा, पैरामीशियम एक सीलिएटेड प्रोटोजोआ है। ओके, एंड लास्ट वन इज स्पोरोजोआ, मोस्ट इंपॉर्टेंट स्पोरोजोआ। व्हाट आर द स्पोरोजोआ? स्पोरोजोआ नेम गिवन through their infectious, they are parasites बेटा, इन्फेक्शियस पैरासाइट्स हैं। एंड स्पोरोजोआ और स्पोरोजोइट इज द इन्फेक्शियस फॉर्म, और इनकी इन्फेक्शियस फॉर्म को बेटा क्या नाम देते हैं? स्पोरोजोइट। दैट्स वाई दे आर गिवन ए नेम स्पोरोजोआ, इसीलिए इनको एक नाम दिया गया स्पोरोजोआ। द एग्जाम्पल ऑफ स्पोरोजोआ इज प्लाज्मोडियम। प्लाज्मोडियम इज ए प्रोटोजोआ दैट इज स्पोरोजोआ, जो बेटा किस स्पोरोजोआ ग्रुप के अंदर रखा गया बिकॉज देयर इन्फेक्शियस फॉर्म इज स्पोरोजोइट। ओके, next thing is that name the disease that is caused by the plasmodium। the disease is malaria। बेटा मलेरिया वो डिसीज है जो प्लाज्मोडियम के थ्रू होती है। देन व्हाट इज द रोल ऑफ फीमेल एनाफिलीज इन द स्प्रेडिंग ऑफ द प्लाज्मोडियम? बेटा फिर फीमेल एनाफिलीज का क्या रोल होता है? फीमेल एनाफिलीज इज द कैरियर ऑफ द प्लाज्मोडियम। इस पैरासाइट का कैरियर होता है, इसकी सलाइवरी ग्लैंड्स में ये ग्रो करता है, और जैसे ही उस सलाइवरी ग्लैंड जिस एक प्लाज्मोडियम की सलाइवरी ग्लैंड्स के अंदर ये ग्रो कर चुका होता है, अगर वो किसी को भी बाइट करता है तो उसके सलाइवा के साथ में कुछ ना कुछ प्लाज्मोडियम आ जाते हैं, उसका स्पेशल टाइप का स्पोरोजोइट फॉर्म आ जाता है और उस पर्टिकुलर पर्सन को भी वो इन्फेक्ट कर देता है। सो इट्स ऑल अबाउट द प्रोटोजोअन्स। सो टुडे वी हैव डिस्कस्ड एंड कंप्लीटेड किंगडम प्रोटिस्टा। बेटा आज हम लोगों ने किंगडम प्रोटिस्टा कंप्लीट कर लिया है। In our next class we will discuss about the most important organism that are fungi। अगले क्लास में बेटा हम लोग डिस्कस करेंगे फंजाई के बारे में। फर्स्ट we discuss about the structure, after that reproduction and after that the classes of the fungi। पहली बार इनका स्ट्रक्चर, इनके अंदर रिप्रोडक्शन, और उसके बाद फिर बेटा हम डिस्कस करेंगे इनकी डिफरेंट क्लासेस के बारे में। So it's all about today's class. Thank you dear students.